Good afternoon. Good afternoon, Bashir. Actually, I was waiting if furthermore people wants to join, so let them join, Bolke. But I can see only you are here, so let's wait for another 1 minute because yesterday there was another girl. So just wait for 1 minute, okay? Yeah. So it's like exactly 3-4. Yeah. Good afternoon. Hmm. So so let them join whoever wants to join. So without any further delay, let's start the class. Okay. So as you know, my name is Gazara Firdaus and I'm one of the person responsible for biology classes in up. Okay. Yeah, great. So as you know, we have discussed about the processes. Okay, how exactly we are creating the recombinant DNA, and with the help of that recombinant plasmid or DNA, we we are going to produce the product or the protein, which is really essential for us. Okay, or we, in other words, we call it as the desired gene of a desired protein. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे. सो अगर आपको कुछ डाउट है तो आज के सेशन में पूछ लेना क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. चलिए, वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. So before starting today's class, I'm going to take the technical chat. Just let me know if you have any internet issues. अगर कुछ इंटरनेट इश्यूज है तो बस मुझे पता चल जाए ताकि मैं थोड़ा सही कर लूँ क्योंकि मेरे हिसाब से तो ठीक है. According to me, the internet is good. Okay, चलो, thank you, Rishi. So then let's move ahead. There is a question on the screen. This was actually the homework question. Okay, this was the homework question. क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था इसको सॉल्व करने को या फिर मैंने किया था मुझे याद नहीं है, बस एक बार इसको रिवाइज कर लूँ. ठीक है. So the question says, which of the following enzyme is used in case of fungus? Okay, it is used in the case of fungus. Release of DNA along with the other macromolecules. ठीक है. So दूसरे वाले macromolecules के साथ हम फंगाई में कौन सा एक ऐसा एंजाइम यूज कर रहे हैं जिससे हम ना डिग्रेड कर पा रहे हैं या फिर हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं. ठीक है. Very good, Rishi. So I'm not going to launch the poll because you are the one person here and you have written your answer here. So very good. ठीक है. चलो. हाँ. तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था बेटा. So when we are understanding this question, one thing that comes to our mind is we have to understand the process because the first process is the isolation, right? So isolation of genetic material. तो पहले हमको क्या करना है? We have to isolate the genetic material, which we call it as the gene of interest. Okay, for which we call it as gene of interest. देखो, we can call gene of interest as foreign DNA, okay, or alien DNA, or gene of interest. We can call it as anything. So to isolate the genetic material, first we have to break open the cell, है ना. तो हमको क्या किया था हमने? सेल का वॉल मेम्ब्रेन को कट करके थ्रू द एंजाइम्स वी यूज द एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द cell wall, cell membrane, and also the other macromolecules present in the cytoplasm. इसके लिए हमने बहुत सारे एंजाइम्स को यूटिलाइज किया था. We had used many enzymes. ठीक है. So after the break-in, okay, after the break-in, what we did, we have utilized the pure DNA, है ना. तो हमको जो प्योर डीएनए मिला था उसको हमने प्रोसेस की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर लिया था. ठीक है. तो अगर मैं आपको बताऊं कौन से एंजाइम्स थे तो इट वाज वेरी इजी बेटा. फॉर द बैक्टीरियल सेल
ओके यू टेल मी बशीर, प्लीज कीप सेइंग विद मी। बैक्टीरियल सेल के लिए हमने कौन सा एंजाइम यूज किया था, प्लांट सेल के लिए which enzyme we used, and for the fungal cell which enzyme we used, because this is given in your NCERT and whatever is given in NCERT you should make it at your fingertips, ठीक है, आपको हमेशा उसके बारे में पता होना चाहिए। सो बैक्टीरियल सेल के लिए हमने यूज किया था एंजाइम, यस we had used the lysozyme. We use the enzyme lysozyme, and for the plant cell, we use the enzyme cellulase. We use the enzyme cellulase, and for the fungal cell, we use the enzyme chitinase. Why? Because fungi has the hard exoskeleton with the chitin, with the material called as chitin. That's why we use this enzyme. Now, after digesting all these, the process that by which we extract the purified DNA was called as spooling. ठीक है, एक स्पूलिंग प्रोसेस था, इसमें हमने क्या किया, चिल्ड एथेनॉल का यूज किया है ना, वी यूज द चिल्ड ethanol. With the help of chilled ethanol, what we did, we extracted the purified DNA. Okay, we extracted the purified DNA, है ना? So as you can see, C is the answer for this question. These are all the wrong answers. ठीक है, amylase देखो बेटा, ये एक saliva में होता है, it is present in the saliva. is salivary amylase. जब हम खाते हैं ना, so when you chew, when you eat something and you chew, this enzyme are secreted in our buccal cavity for the better mastication, for the better chewing, and for the better digestion. ठीक है, चलो. Now again the same repeated question. So you can see here, during isolation of DNA, addition of which of the following causes the precipitation of purified DNA? ठीक है, प्यूरिफाइड डीएनए हम लोगों ने कैसे आइसोलेट किया, बाय यूजिंग विच मटेरियल, ठीक है, हमने क्या ऐड किया, ओके, चलो, वेरी गुड बशीर, वी हैव यूज्ड द चिल्ड एथेनॉल। हम लोगों ने क्या किया था, मैंने बोला ना, वी डिड अ प्रोसेसिंग कॉल्ड एज स्पूलिंग। तो स्पूलिंग में हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया था जिसका नाम था स्पूल। तो वो स्पूल कैसा था, मतलब ऐसा था कुछ, है ना, इट वाज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ओपन रॉड टाइप था, तो इससे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो डीएनए को लगा था रिमूव इट, ठीक है। सो इन अ टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द साइड्स, मतलब साइड साइड से हमको चिल्ड एथेनॉल डालना था, एंड आफ्टर पुटिंग द चिल्ड एथेनॉल द डीएनए वाज स्टार्टेड टू फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस प्यूरिफाइड डीएनए स्टार्टेड टू फ्लोट, एंड देन we took the spool and then we removed the DNA. Okay, so that is spooling. We did the treatment with chilled ethanol. Okay, chilled ethanol. So this is clear to you. Okay, and this ribonuclease enzyme is used for digesting the enzyme RNA. Okay, for digesting the enzyme RNA, and protease of the enzyme which digests the biomolecule proteins. Okay, proteins को digest करता है, and DNA polymerase तो देखो बेटा, it helps in the polymerization. मतलब एक अगर डीएनए स्ट्रैंड है, मेरे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, तो मुझे और एक बनाना है, तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ अ प्राइमर, ठीक है, प्राइमर का हेल्प करूंगी। वी माइट हैव स्टडीड दिस इन द रेप्लिकेशन, है ना, अभी देखो पीसीआर में भी आया था ये, इट वाज केम इन द पीसीआर अगेन। सो दिस प्राइमर विल अटैच ओनली एट द 3 प्राइम एंड एंड इटसेल्फ बिकम द 5 प्राइम एंड। तो यहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड होते होते क्या करेंगे, देयर विल बी द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, तो एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, और जहाँ पे 5 है उसके ऑपोजिट में 3 होगा एंड 5 होगा। ओके, सो दिस इज हाउ दिस फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमरेज, और यू कैन से एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये होता है एक एंजाइम की हेल्प से, दैट एंजाइम इज द पॉलीमरेज। ओके, सो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन। सो ये सब सारे ऑप्शंस गलत हैं, चिल्ड एथेनॉल इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ सो yesterday what we were discussing, so ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने नोट किया था। ओके, द फर्स्ट पॉइंट वाज द आइसोलेशन, वी डिड दैट। ओके, सो हम लोगों ने क्रश कर लिया था लीफ को, एंजाइम्स डाल दिया, फिर थ्रू द हेल्प ऑफ स्पूलिंग प्रोसेस वी हैव आइसोलेटेड द प्यूरिफाइड डीएनए। देन व्हाट वी डिड, हम लोगों को जो डीएनए मिला था वो बहुत लंबा था। ओके, इतने लंबे डीएनए के साथ हम लोग को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वी हैड टू कट डाउन द। जब हम डीएनए को कट डाउन करेंगे तो उसी डीएनए के एक पार्ट में, जैसे देखो यहाँ पे एक पार्ट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब यही जीन हमको चाहिए
इसी जीन से हमको कोई प्रोटीन या एंजाइम या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कट कर लिया। अभी एक सोल्यूशन में बहुत सारे कटेड डीएनए स्ट्रैंड्स थे। अब हमको क्या करना था, इनको सेपरेट करना था। ठीक है, कट कर लिया हमने विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रेन। हम लोगों ने कौन सा एंजाइम यूज किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और ये एंजाइम कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस में, जिसको हम कहते हैं रिकग्निशन साइट्स। ओके, रिकग्निशन साइट्स में जहाँ पे 6 बेस पेयर्स का साइट था, ओके, तो वहां पे जाके स्पेसिफिकली कट करेगा एंड देन वी गेट द स्मॉल स्मॉल स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो अभी हम लोग को जब बहुत सारे स्ट्रैंड्स मिल गए तो हमको सेपरेट करना, बिकॉज वी हैव द पूल ऑफ small fragment DNA and the large fragment DNA. To separate the DNA fragments, we did the gel electrophoresis. हम लोगों ने क्या किया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया एंड उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, है ना, वी यूज द इलेक्ट्रिसिटी। सो लेफ्ट साइड हम लोगों ने एक एगारोस जेल में पिट क्रिएट कर दिए थे, वी हैड क्रिएटेड द वेल्स, उसको हम लोगों ने कैथोड लगा दिया था एंड उसके ऑपोजिट में वी प्लेस द पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज कॉल्ड एज एनोड। ठीक है, तो इस सारे सेटअप को हमने एक बैटरी और प्लग को कनेक्ट कर लिया। देन व्हेन वी स्विच ऑन, द करंट फ्लोज इनसाइड द सिस्टम। जो करंट फ्लो करेगा, देन व्हाट हैपन, द डीएनए पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द वेल और द पिट। ठीक है, जो पिट्स हैं या वेल है, वहां पे डीएनए स्ट्रैंड्स दे स्टार्ट टू मूव। ओके, द लार्जर डीएनए मॉलिक्यूल्स will not move further, but the smaller ones will move very fast. क्योंकि देखो, जिसका वेट जैसा है वैसा होता है ना, so with that is very heavier and smaller, if it is heavier and larger in size, it will not move further. If it is smaller in size, then it can move very fast. ठीक है, इसका हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। देन जब हमने सेपरेट कर लिया, तो देन वी गॉट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उस अगारस जेल में एक पार्ट में हम लोगों को जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला था, है ना। हम लोगों ने इथिलियम ब्रोमाइड का स्टेन डाला, फिर हम लोगों को ऑरेंज कलर के बैंड दिखे, तो उसमें एक था जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो उसको हमने ऐसे उठा लिया था, वी टुक दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वी कॉल दैट प्रोसेस एज इल्यूशन। Okay, elution means what? Extraction of the gene of interest from the agarose gel. Illusion बोल के हम लोगों ने इसको निकाल दिया। After taking out that gene of interest, we have just one simple strand of gene of interest. बस एक ही है। तो हमको इसको क्या करना है? We have to make the multiple copies of that gene of interest. एक है, एक से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमको बैकअप में बहुत सारे चाहिए। चलो हम लोग गेस करते हैं, एक के साथ कुछ हम लोगों ने ट्राई किया, वो रॉन्ग निकला, मतलब सम एरर वाज क्रिएटेड, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया। So if we keep the backup, then it is very helpful for us. That is why we have to amplify or multiply the number of gene of interest. ठीक है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने बहुत कॉपीज में बना लिया, और उसको हम लोगों ने किया था बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज पीसीआर। हम लोगों ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज करके वी हैव मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या हो गया, हमारे पास बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम एक वेक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, वेक्टर इज कॉल्ड एज प्लास्मिड। ठीक है, वेक्टर क्या होता है बेटा, इन सिंपल वर्ड्स वेक्टर एक व्हीकल होता है, मतलब व्हीकल होता है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है एंड ये क्लोनिंग करके हम लोगों को डिजायर्ड प्रोटीन देता है। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनसाइड द प्लास्मिड। जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमको मिल जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड के। अब हम क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को एक होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करेंगे। Okay, we'll insert that inside the host cell. So this was the fourth part which we wanted to study. ठीक है, यहाँ से अब आज का क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो, तो अब तक जो मैंने बोला है ये कल के क्लास का रिवीजन था, इतना हम लोगों ने फिनिश अप कर लिया था। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव देन। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, मैंने बोल दिया ना आप लोगों को। सो वी हैव द जीन ऑफ इंटरेस्ट विद अस। ठीक है, तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम यू कैन सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, पहले वी हैड द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट था एंड वी हैड द प्लास्मिड। ठीक है, हम लोगों के पास प्लास्मिड था।
तो हम लोगों ने प्लास्मिड को जीन ऑफ इंटरेस्ट को ज्वाइन कर लिया एंड वी गॉट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। ठीक है, तो इस रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को हम लोगों ने होस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया। We inserted this recombinant DNA inside the host. Okay, so host is called as recipient host because देखो recipient means what? Something which is receiving. Okay, यहाँ पे host cell कौन है? Take the example of E. coli. Okay, Escherichia coli is a bacteria which is a recipient host here. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ligated DNA. What do you mean by ligated? Ligation means joining. देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट तो हमारे पास था ही ना बेटा, देखो ये बन गया एक पार्ट क्लासमेट का और एक पार्ट था हमारा ये जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के साथ हम लोगों ने अटैच किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। ठीक है, तो इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहाँ पे लिखा है लाइगेटेड डीएनए। ठीक है, सो लाइगेटेड डीएनए को हम लोगों को इंसर्ट करना है होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, so now you can ask me, ma'am, how we are going to do it? Very simple. We have studied the methods. I think Manjula ma'am has told you. Okay, first you have to make the host cell competent. मतलब कुछ आप ट्रीटमेंट करोगे, कैल्शियम क्लोराइड, हीट शॉक दोगे एंड यू विल मेक द सेल कॉम्पिटेंट। ठीक है, जो हमारा होस्ट सेल है उसको हम लोग कॉम्पिटेंट बनाएंगे। या फिर वी विल यूज द माइक्रो इंजेक्शन। We will use the method of micro injection or we will use the method of gene gun. ठीक है, ऐसे कोई भी मेथड यूज करके we are going to insert the recombinant DNA inside the host. ठीक है, तो अब after the introduction of recombinant DNA into the host, that process is called as transformation. मतलब क्या हो गया, recombinant DNA को host के अंदर डाल दिया, तो इसको बोलते हैं हम transformation. This process is called as transformation. Okay, so now you have done the transformation. After the process of transformation, there are three possible cases. ठीक है, I think this Manjula ma'am has told you this. क्योंकि मुझे लगता है कि बताया था, तो मैं थोड़ा एक क्या कहते हैं एक आपको ना एक ग्लिम्स देती हूँ इसके बारे में। ठीक है, जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, सो व्हेन वी ऐड द प्लास्मिड विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, देखो ये हमारा प्लास्मिड था। ठीक है, ये हमारा प्लास्मिड था एंड यहाँ पे हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट था, है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट था। तो हम लोगों ने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लास्मिड के अंदर इंसर्ट कर लिया, inserted the plasmid inside the gene of interest. Now this is called as recombinant DNA or recombinant plasmid. ठीक है, ये हो गया बेटा। Now what we did, we introduced or inserted this inside the host cell. We inserted this inside the host cell. जब हम इसको insert करेंगे host cell में, this process, okay, this process is called as, okay, this process is called as transformation. Okay, transformation, इसको हम बोल देते हैं transformation. Now transformation चलो हम लोगों ने कर लिया, we did the transformation. Now there are three possible cases, मतलब यहाँ पे तीन possible cases हो सकते हैं. What are those three possible cases? First case, आपका जो होस्ट सेल का बैक्टीरिया है इसमें प्लास्मिड ही नहीं आया, दैट मीन्स व्हाट, नो प्लास्मिड एंटर्ड। ओके, नो प्लास्मिड एंटर्ड, ये एक केस हो गया। और एक केस मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, यहाँ पे बैक्टीरिया का सेल है, ये होस्ट सेल है, प्लास्मिड तो एंटर हुआ लेकिन इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया। ओके, प्लास्मिड हैज एंटर्ड बट देयर इज नो जीन ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज द सेकेंड possibility. So third possibility is very simple. मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थर्ड पॉसिबिलिटी, एक बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, तो इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, साथ में इसके कौन है, हमारा प्लास्मिड भी है। सो दीज आर द थ्री पॉसिबल केसेस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद थ्री पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, सो इन पॉसिबल केसेस के लिए हम लोग नेम देते हैं, वी गिव द रिस्पेक्टिव नेम्स फॉर दिस. So this first part where no plasmid entered, we call this as non-transformant. मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, ओके, नॉन ट्रांस
फॉर्मेट, ये एक पॉसिबल केस है। ठीक, सेकेंड पॉसिबल केस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, दैट मीन्स प्लाज्मिड हैज एंटर्ड बट नो जीन ऑफ इंटरेस्ट, सो फॉर दिस व्हाट वी कैन कॉल नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन रिकॉम्बिनेंट जीन नहीं आया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं आया, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ओके, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, ये सेकेंड पॉसिबल केस है। जो थर्ड पॉसिबल केस है हम इनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। आई होप अब आपको रिवाइज हो रहा है। ठीक है, मंजुला मैम might have told you about this while explaining the selectable marker। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर को हम किस तरीके से यूज करते हैं, वहां पे हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सब यूज किया था। ठीक है, सो दीज वर द थ्री पॉसिबल केसेस वी माइट occur आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हमको क्या करना है बेटा, नाउ व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू इज we have to remove this। okay, we don't want first case wala bacteria, we don't want second case wala bacteria, which bacteria we want the recombinant transformant। तो ये हम लोगों ने किया था by using the selectable marker। okay, selectable marker। so you might ask me ma'am what is selectable marker। तो बेटा आई होप ये सब किया है। अब अगर मैं ये बोलती बेटी तो बहुत लंबा चले जाएगा, मैं एग्जांपल दे देती हूँ। सेलेक्टेबल मार्कर कोई भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जैसे एम्पिसिलिन। ओके, जैसे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये सारे हमारा जो प्लाज्मिड है पीबीआर 322 उसमें ये जीन्स हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज जीन्स हम लोगों ने क्या किया, फिल्टर किया एंड वी टुक आउट ओनली द रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर। ठीक है, ये आपको शायद अभी रिवाइज हो गया। ठीक है ना। हाँ, तो अभी वो पेज आपको बाद में नहीं मिलेगा। आई होप यू हैव टेकन इट डाउन या फिर प्रीवियस क्लास में हुआ है। नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, चलो अब हम लोगों को सेकेंड पेज में आना है फॉर सेकेंड स्टेप। सो अब हम लोगों को क्या पता चला, हम लोगों ने, हाँ यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यू करना है ना, कंटिन्यू दैट। ओके, सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हॉस्टल में डाला, 3 केसेस थे और हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ओनली द ट्रांसफॉर्मेंट, दैट ट्रांसफॉर्मेंट विच हैव द व्हाट, रिकॉम्बिनेंट जीन। ठीक है, वो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो वही यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस में लिखा है, लेट अस सी दैट if recombinant DNA bearing the ampicillin resistant gene is transferred to the E. coli cell। ठीक है, हम लोगों ने एक जीन जो है उसमें E. coli सेल में ट्रांसफर कर दिया, then what happened, the E. coli cell will become resistant। ठीक है, इसके पास अभी क्या है, see E. coli has the ampicillin resistant gene, so it will show the character, it will make the protein, so that protein will make the E. coli resistant। जब कभी भी इस E. coli सेल को कहीं पे एम्पिसिलिन मिल गया तो व्हाट इट विल डू, ये डर के भागेगा नहीं, ये लड़ेगा। क्यों, अभी इसको रेजिस्टेंस आ गया है ना बेटा, तो ये अभी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है तो इट विल डट के फाइट। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज टोल्ड हियर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अगर हम ट्रांसफर करेंगे इकोलाई में तो वो भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल बन जाएगा। ठीक है, चलिए देन if the transformed cells are spread on the agar plates containing the ampicillin, only the transformants will grow and transformant cells will die। ओके, जो यही मैंने अभी आपको बोला ना पीछे, सेम वही चीज है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लीज गो एंड रिवाइज व्हाट मंजुला मैम हैज टोल्ड यू। कि उन्होंने आपको बोला होगा क्लोनिंग वेक्टर्स का जब एक्सप्लेन करते हैं तब सेलेक्टेबल मार्कर्स में पूरा एक प्रोसेस है बेटा उसमें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन जीन को वहां पे बैम हिच में कट करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर टेट्रासाइक्लिन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। ये सारा वहां पे अब जाके पढ़ लेना। ठीक है, सो यहाँ पे एक अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो क्या है, वी हैव टू टेकन द, हम लोगों ने क्या ले लिया है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट भी रखा और ट्रांसफॉर्मेंट, जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है सिर्फ उसको लिया है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू, we will extract the desirable product from it। देखो इतना सा प्रोसेस हम लोगों ने किया क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हमको चाहिए कुछ प्रोटीन।
या फिर कुछ एंजाइम या फिर कुछ मटेरियल, ठीक है। तो यहीं पे लिखा है देखो, द अल्टीमेट एम, okay, the ultimate aim of recombinant DNA technology is to produce the desirable protein. Yesterday I took the example of insulin. Okay, I took the example of insulin. Okay, so insulin is a hormone which is needed for the people who are suffering from the diabetes. ठीक है, जो डायबिटीज पीपल के लिए हम लोग इंसुलिन के इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। तो अभी इंसुलिन तो छोटे छोटे अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस होगा ना बेटा, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, बल्क में करना है हमको। और कैसे करना है इसका सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में। यू विल अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली इंसुलिन इज प्रोड्यूस, ठीक है, पूरे बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स के साथ। ठीक है, तो हमारा डिजायरेबल प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, इंसुलिन हो सकता है, ठीक है, कोई भी दूसरा ड्रग हो सकता है, कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग हो सकता है, इट माइट बी एनी, ठीक है। नाउ if the protein encoding gene is expressed in a homologous host, heterologous host, it is called as recombinant protein. देखो बेटा, listen to me, इतना टेंशन नहीं लेना इसके बारे में, what I am saying you उसको सुनो। अभी क्या है ना बेटा, there is a cell, this is a host cell, ये आपका इक्वलाई था होस्ट सेल। अब इसमें यू हैव एडेड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसमें आप लोगों ने क्या ऐड किया था बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड किया, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अभी ये होस्ट सेल ना कुछ प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, इट इज प्रिपेयरिंग सम प्रोटीन। बट ओरिजिनली ये प्रोटीन जो है वो इकोलाई का नहीं था। Originally, E. coli didn't have the ability to produce that insulin protein, but now it is producing the protein because it has obtained that gene of interest. अभी इसके प्लास्टिक में वो जो प्रोटीन बनाने का जीन है, इसीलिए इसके अंदर वो प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, जो प्रोटीन होस्ट सेल ओरिजिनली नहीं बना सकता था, लेकिन हम लोगों ने वो प्रोटीन एनकोडिंग फॉरेन जीन को जब डाल दिया तो वो एक्सप्रेस हुआ और वो एक प्रोटीन क्रिएट किया, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। मतलब ओरिजिनल प्रोटीन नहीं है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो, यस क्वेश्चन, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, सो अगर इतना समझ आ गया है तो हम अगली पेज में चलते हैं। ओके, ना, सो हियर, ओके, एज आई वाज टेलिंग यू, वी आर प्रिपेयरिंग इंसुलिन नॉट जस्ट वन पीपल। देखो बेटा, हमने आइसोलेट किया, कट किया, उसको सेपरेट किया, फिर एम्पलीफाई किया, सब किया, ठीक है। इतना सब करने के बाद अगर एक ही बंदे को इंसुलिन मिल रहा है तो फायदा क्या, व्हाट इज द यूज? Okay, ultimately, if we are producing the insulin means we have to produce it in the larger amount, in the larger, in the huge amount में create करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे सिर्फ एक लैबोरेटरी में नहीं, इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, we call it as bioreactor. Okay, we call those instrument as bioreactors. So in the next slide we will see about the bioreactor, ठीक है। तो बायोरिएक्टर क्या है, उससे पहले यहाँ पे सेंटेंस है वो पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेल्स विथ फॉरेन जीन्स कैन बी ग्रोन इन लैबोरेटरी, वी नो इट, है ना। हमने क्या किया, वी इंसर्टेड द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन प्लाज्मिड एंड वी अलाउड इट टू ग्रो इन द लैबोरेटरी। सो कल्चर्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट, अभी ये कल्चर से हमको क्या मिला, वी आर यूटिलाइजिंग द डिजायर्ड प्रोटीन। मैंने बोला ना, डिजायर्ड प्रोटीन मतलब कौन सा प्रोटीन, जो डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट से प्रोटीन बना है। तो बेटा, इफ यू रिमेम्बर द सेंट्रल डॉगमा, एक जीन होता है, जीन में इंफॉर्मेशन होती है, वो जीन क्या होता है, जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है, बाद में प्रोटीन देता है। वो प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। ये सब याद है ना आपको, है ना। तो अब हम लोगों ने इतना सब किया, डिजायर्ड प्रोटीन मिल गया। अभी डिजायर्ड जो प्रोटीन तो मिल गया है, ये इसको हम रॉ नहीं यूज करते, वी डोंट यूज इट एज इट इज, वी आर प्रोसेसिंग इट, वी आर प्यूरिफाइंग इट, वी आर सेपरेटिंग इट, कि ठीक से उसको सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, देन हम लोगों को मिलता है एक छोटी बॉटल में इंसुलिन। देन व्हाट वी डू, वी विल पुट द ब्रांड नेम, उसके ऊपर एमआरपी लगाएंगे, फिर वी विल सेल इट इन द मार्केट, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस में वो क्या होता है,
हम लोग अभी देख। ओके, ये जो सेंटेंस है बेटा, इसको मैं बाद में समझाऊंगी आपको, कुछ बोल के फिर ओके विल गेट बैक टू नाउ। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द बायोरिएक्टर्स नाउ। मैंने बोला इंसुलिन को हम छोटे अमाउंट में नहीं बना रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े अमाउंट में बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स में हम लोगों को बनाना है insulin। क्यों? क्योंकि इतने लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे डायबिटिक पीपल हैं, सबको इंसुलिन चाहिए। अभी देखो, यू कैन सी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में यूजुअली 40 to 45% पीपल और ऑलवेज डायबिटिक इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड नहीं बोल सकते, सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। ठीक है, तो उनके लिए हम लोगों को इंसुलिन चाहिए। ठीक है, तो कितने हजार लोग हो गए ना। तो बायोरिएक्टर इज नथिंग बट इट इज अ बिग वेसल। मतलब एक छोटा बर्तन नहीं है, बहुत बड़ा बर्तन है जिसमें हम लोग इंसुलिन बना रहे हैं, लेकिन बहुत लार्जर अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट। ठीक है, सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, these are the vessels in which raw materials are biologically converted into specific product and enzyme। हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल ले लिया है? हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है इंसुलिन का। तो हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट कौन सा बन गया? इंसुलिन। ठीक है, तो अभी इंसुलिन को हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, इंसुलिन प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा है, ये किधर से आया? ओके, मिट्टी से उठा लिया आप लोगों ने, हवा से ले लिया, पानी से ले लिया? नहीं बेटा, we have extracted this insulin product by using the live organism। if you remember the definition of biotechnology, biotechnology यही बोलता है, it is the technology in which we use the live organism। लाइव ऑर्गेनिज्म वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई माइक्रोब हो सकता है, वो कोई प्लास्मिड हो सकता है, वो कोई एंजाइम हो सकता है, कुछ भी। उसको हम यूज करके वी आर मेकिंग अ प्रोडक्ट विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमन। हम लोग उससे कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोटीन क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, बस और कुछ नहीं। सो वी हैव यूज्ड द माइक्रोबियल और एनिमल और ह्यूमन सेल्स टू मेक अवर नेसेसरी प्रोडक्ट। ठीक है ना। So these bioreactors are very heavy, large vessels. They can, they have the ability to withstand nearly thousand liters of culture। तो इतने बड़े हैं कि उसमें आप 1000 लीटर का कल्चर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इतना 1000 लीटर्स के अमाउंट में इंसुलिन बनाओगे तो पता नहीं कितने लाखों लोगों के लिए इंसुलिन बन जाए। ठीक है ना। अभी इतना सब हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ मेजर्स भी टेक केयर करना है। वी हैव टू टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। So what kind of precautions we have to take? We are not dealing a small test tube or a small petri plate kind of reaction. We are doing it in a bigger vessels. That means we have to be extra careful, extra precautionary measures we have to take. So यहाँ पे हम क्या करेंगे? Bioreactor has to be always maintained in the optimal condition। मतलब क्या? देखो बेटा, हम लोग एक बायोरिएक्टर में, हमारा इकोलाई जो सेल है, होस्ट सेल है, उसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको हम लोग ग्रो करने छोड़ रहे हैं। वी आर अलाउइंग इट टू ग्रो। जब हमने इकोलाई को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, देन वी हैव टू प्रोवाइड द एडिक्वेट टेम्परेचर, एडिक्वेट पीएच, एडिक्वेट गैस अमाउंट। ठीक है, क्योंकि गैस तो चाहिए बेटा, अगर वो एरोबिक बैक्टीरिया है तो इसके लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। So these materials we have to provide, which will be helpful for the growth of bacteria। ठीक है, तो ये जब बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो होगा तब तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट तुमको आराम से अच्छे से मिल जाए। ठीक है, so this is the ultimate aim of the bioreactors। So if you are asking me, ma'am, what bioreactors are? These are the bigger vessels, okay, where we are culturing, culturing मतलब growing, okay, culturing or growing host cells, okay, host cells which have recombinant DNA in them, which have recombinant DNA in them and growing in the larger amount, okay, larger quantity or larger amount में बना। ठीक है, ये अल्टीमेट एक सिंपल सा डेफिनेशन। चलो अभी, चलो मैंने सोचा कि इसको शुरू से करने से अच्छा रख लेते हैं, थोड़ा टाइम कम लगेगा। ओके चलो, तो मैंने इसको पहले ही ड्रॉ कर दिया ना। लिसन टू मी रशीद, ओके, मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि बायोरिएक्टर दिखता कैसे। ठीक है,
लुक एट दिस, आर यू लुकिंग एट दिस व्हाइट चॉक पिस, मतलब व्हाइट में जो लिखा है ना, ये एक बायोरिएक्टर है, ठीक है, ये हमारा बायोरिएक्टर। सो ये एक वेसल है, कोई स्टेनलेस स्टील है, एक हेवी बॉटम वेसल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ले लिया। अभी ये ले लिया, तो इसमें हम फर्स्ट क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड द न्यूट्रिएंट्स। देखो, अब कोई भी हम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो हमारे लिए क्या है बेटा, if you are allowing in a bacteria to grow, you have to provide the necessary nutrients, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैंगनीज, जो जो एक बैक्टीरिया को चाहिए, कार्बन सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन सोर्स, तो ये सब फूड होता है उसका। जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, देन इक्वलाई विल ग्रो, ठीक है। अभी यू कैन आस्क मी, अब न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करोगे, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म? देखो बेटा, वी कैन से न्यूट्रिएंट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम, कि उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम। ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, दिस माइट बी सॉलिड और दिस माइट बी लिक्विड, दिस माइट बी सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो अभी जो सॉलिड होता है ना, जो सॉलिड लिक्विड मीडियम होता है, वो क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ अगार अगार। Okay, I told you agar agar. This is extracted from the seaweed or algae or jelly leaf. ठीक है, जो वो अगार अगार से एक्सट्रैक्ट होता है वो एक सॉलिडिफाइंग मीट है, मतलब जब गर्म होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड इफ यू पोर इट इन द पेट्री प्लेट एंड उसको थोड़ा ऐसे ही हवा लगने छोड़ दिया, देन व्हाट हैपन, इट सॉलिडिफाइज एंड इट मेक्स अ जेली लाइक कोटिंग, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ पेट्री प्लेट। ओके, एक पेट्री प्लेट में हम लोगों ने क्या किया, गरम गरम अगार सोल्यूशन को यहाँ पे ड्रॉप किया एंड वी अलाउड इट टू नो सॉलिडिफाई। देन ये जो रेड कलर में जो मैंने लिखा है, रेड कलर में, दिस इज द मीडियम। ओके, तो दिस इज द न्यूट्रिएंट मीडियम बट इन द सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में है। ओके, ये सॉलिड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को कल्चर करने के लिए छोड़ देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इकोलाई, कोई छोटा इकोलाई यहाँ पे डाल दिया तो वो अपने आप मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज एवरी बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल इकोलाई 20 मिनट्स तक अपना नया जनरेशन बना लेता है, ठीक है। मतलब 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया दो बन जाता है, दो से चार बन जाता है, चार से फिर आठ बन जाता है, ऐसे, ठीक है। तो ना, सो बट दिस सॉलिड मीडियम अगार, ओके, सॉलिड अगार मीडियम, ये जो है हम लोग लैबोरेटरीज में यूज करते हैं बस छोटे छोटे काम के लिए। बट यहाँ पे देखो हम लोगों को लार्ज अमाउंट में करना है, सो फॉर अस वी आर टेकिंग द लिक्विड मीडियम। ठीक है, तो लिक्विड मीडियम के लिए एक नेम है लिक्विड ब्रॉथ मीडियम और लिक्विड ब्रॉथ न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेसल ले लेंगे यहाँ पे। सो इन द वेसल हम क्या करेंगे, अगार पे यूज नहीं करेंगे, वी डोंट यूज अगार। अपार्ट फ्रॉम अगार वी विल यूज ऑल द न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ठीक है, सल्फर, जो भी उसको चाहिए सारा न्यूट्रिएंट डाल देंगे और वो लिक्विड मीडियम में मेंटेन होता है, ठीक है। देन व्हाट वी डू, वी ऐड द कल्चर होने का जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐड करते हैं। ओके, वी ऐड द ऑर्गेनिज्म कल्चर, तो एक्चुअली उसका एक साइंटिफिक नेम है बेटा, वी कॉल इट एज इनोकुलम। ओके, तो वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। इनोकुलम, इनोकुलम एक्चुअली क्या है बेटा, इट इज द कल्चर सैंपल, कल्चर सैंपल टू बी ग्रोन, मतलब ये एक सैंपल है, ठीक है। ये सैंपल को हम यहाँ पे डालेंगे तो ग्रो करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है इकोलाई का, ठीक है। ये जो इकोलाई है नॉर्मल इकोलाई नहीं है, इसमें क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। तो ये हमारा इनोकुलम है, इसमें इकोलाई है। ये जब हम इसमें डालेंगे तो बहुत सारे इकोलाइजर्स 20-20 मिनट्स में मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे थाउजेंड्स में बन जाएंगे, ठीक है। तो यही सेम मेथड हम लोगों ने यहाँ पे बायोरिएक्टर में अप्लाई किया है, सेम मेथड, ठीक है। सो हियर व्हाट हैपन, हम लोगों ने क्या किया, न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड कर लिया, फिर हम लोगों ने क्या किया, इनोकुलम ऐड किया, जो कि कल्चर होके वी गेट द मेनी मोर इक्वलाइजर विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अभी चलो हम लोगों ने सारा सेटअप कर, ठीक है। अभी हम लोग तो देखो इसको मेंटेन करना है, इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस, तो इसके लिए कंट्रोलिंग यूनिट चाहिए, ठीक है। अब बताओ कि टेम्परेचर कुछ कम ज्यादा करना है, या कुछ पीएच को बैलेंस करना है, या एयर कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब मेंटेन करने के लिए यहाँ पे यूनिट होता है, वी कॉल इट एज कंट्रोलिंग यूनिट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग यूनिट, देखो ये दिख रहा है ना कंट्रोलिंग यूनिट।
तो इस बायोरिएक्टर को अटैच करके एक यूनिट है, दिस इज कंट्रोलिंग यूनिट। इन दिस यूनिट वी कैन सेंस द टेम्परेचर। तो ये यूनिट में बताएगा कि आपका बायोरिएक्टर कौन से टेम्परेचर में है। ठीक है, इफ इट इज इन 30 डिग्री सेल्सियस तो वो रीडिंग बताएगा आपको कंट्रोलिंग यूनिट। ठीक है, अगर पीएच बताओ कि 5 है, 5 एसिडिक पीएच है, तो वो आपको शो करेगा। ओके, सो इन अदर वर्ड्स बेटा इट शोज यू द रीडिंग्स। कि सेंस करके रीडिंग आपको शो करता है, दिस इज द कंट्रोलिंग। एंड यू कैन कंट्रोल इन दैट, इफ यू वांट टू डिक्रीज द टेम्परेचर यू कैन डिक्रीज, इफ यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर यू कैन इंक्रीज दैट। ओके, नाउ अभी सो सेकेंड फैक्टर हमको क्या याद रखना है, टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर भी देखो बेटा हम लोगों को ऑप्टिमम रखना है। ऑप्टिमम मीन्स व्हाट, फेवरेबल। कि फेवरेबल टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो यूजुअली एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए लाइक 30 to 60 डिग्री सेल्सियस एक फेवरेबल डिग्री होता है, फेवरेबल टेम्परेचर होता है। तो इसके बीच में ना अच्छे खासे क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, वो हम लोगों ने जो पीसीआर में यूज किया था वो तो देखो थर्मोस्टेबल था। हम लोगों ने 92 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन किया था। तो ये नॉर्मल बैक्टीरिया तो सर्वाइव नहीं करेगा, दैट इज व्हाई वी वांटेड द टैक पॉलीमरेज और थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया। ठीक है, जिसमें से हमने टैक पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट किया, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी चलो यहाँ पे देखते हैं तो टेम्परेचर मैम कैसे कम ज्यादा होगा। चलो अब मुझे टेम्परेचर ज्यादा है, कम करना है, मैं क्या करूँ। देखो बेटा बायोरिएक्टर के ऊपर एक जैकेट होता है, इसको हम बोलते हैं वाटर जैकेट। ठीक है, तो इस वाटर जैकेट में इफ यू वांट टू डू द कूलिंग प्रोसेस, अगर आपको कूलिंग करना है बायोरिएक्टर को तो तब आप यहाँ पे कोल्ड वाटर को भेज देना। यू सेंड द चिल्ड वाटर और कोल्ड वाटर, देन क्या होगा, बायोरिएक्टर तो स्टेनलेस स्टील का है, तो यहाँ पे जब ठंडा ठंडा पानी आएगा तो ऑब्वियसली ठंडा ठंडा रहेगा, बायोरिएक्टर विल बिकम कूल। इफ यू वांट टू डू द मोर हीट, मतलब जैसे आपको भी टेम्परेचर को बढ़ाना है और आपको बहुत गर्म करना है, देन व्हाट यू विल डू, with this water jacket you will send the hot water. Okay, so by this with the help of water jacket you can maintain the temperature either it is low or high. चलो ठंडा भी करना है गर्म भी करना है, वो हम क्या करेंगे, इसी वाटर जैकेट की हेल्प से करेंगे। ठीक है, नाउ वी आर डन विद द पीएच, सॉरी टेम्परेचर। नाउ वी विल गो टू द पीएच। एक बार टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो नाउ वी हैव टू लुक एट द पीएच। ठीक है, if the culture medium is more acidic or more basic, we don't want extreme acidic or extreme basic, we want optimum pH। तो एक बैक्टीरिया के लिए जो इकोलाई है उसके लिए ऑप्टिमम पीएच तकरीबन 4.6 से लेके, ठीक है, 6 तक हो सकता है। अभी आई एम सेइंग एन ऑप्टिमम रेंज, मैं आपको एक एवरेज रेंज बता रही हूँ। ठीक है, देखो हम लोग इकोलाई जो है वो एक्चुअली थोड़ा बहुत एसिडिक पीएच में ही ग्रो, it will grow in the acidic. Now, if we want to increase the acidity, मतलब if we want to increase the acid content, then what we will do here from the pH knob, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक pH का पाइप, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे, कोई भी एक एसिड मटेरियल यहाँ से हम डाल देंगे, तो क्या होगा, इस कल्चर को एसिडिटी मेंटेन होगी। नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेंटेन द कल्चर इन द अल्कलाइन मीट, आपको इसको बेसिक बनाना है, तब आप कोई भी अल्कलाइन डाल दो। ठीक है, NaOH डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो जब ये डालोगी तो कल्चर विल बी मेंटेन इन द अल्कलाइन कंडीशंस। सो लाइक दिस pH इज आल्सो मेंटेन, अभी pH मेंटेन। ठीक है, चलो अभी हम लोगों के बायोरिएक्टर में क्या है, न्यूट्रिएंट है, इनोकुलम है, जिसमें हम लोगों को कल्चर करना है, ग्रो करना है इकोलाई बैक्टीरिया को, in which there is a recombinant DNA. We have maintained the bioreactor in the good temperature, optimum temperature, or in other words favorable temperature. हम लोगों ने favorable pH भी दे दिया। अभी हमको देना है एरेशन, एरेशन और we can say air और gases। क्यों, देखो बेटा इकोलाई इज एन एरोबिक बैक्टीरिया, इसके लिए ऑक्सीजन की नीड है। ठीक है, एनारोबिक नहीं है, एरोबिक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, see we are growing just E. coli, means what we are going to do, we are sending the air but not the normal air, we are sending it to the sterilized air। sterilized means what, देखो बेटा एक नॉर्मल एयर जो है ना, हमको एयर नहीं दिखता है, in the air there are many small spores or microorganisms are present। Okay,
So if I say I have sterilized the air, I have removed all those microbes. मैंने सारे माइक्रोब्स को रिमूव कर लिया, सिर्फ मेरे पास क्या है, प्योर गैस है, प्योर एयर है, ठीक है। तो वही स्टेरिलाइज्ड एयर मैं यहाँ से भेजूंगी, तो देन व्हाट हैपन, कल्चर विल गेट द गुड स्टेरिलाइज्ड एयर, देन देयर इज नो चांस ऑफ कंटामिनेशन। यहाँ पे कंटामिनेशन के चांस, इफ यू डोंट नो व्हाट इज कंटामिनेशन, लेट मी टेल यू। हम लोग ई कोलाई सेल का कल्चर कर रहे हैं, देन वी वांट ओनली ई कोलाई, वी डोंट वांट एनी डिफरेंट बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्रेप्टोकॉकस नहीं चाहिए, स्टेनोस्टेफाइलोकॉकस नहीं चाहिए, तो ऐसे कुछ भी मुझे दूसरा बैक्टीरिया नहीं चाहिए, मुझे सैल्मोनेला नहीं चाहिए, वी वांट ओनली ई कोलाई, ठीक है। जब हम स्टेराइल एयर भेजेंगे, स्टेरिलिटी मेंटेन करेंगे, स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, देन व्हाट हैपन, द चांसेस ऑफ कंटामिनेशन इज वेरी लेस, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, यार मेंटेनिंग, ठीक है। चलो अभी नाउ वी हैव रीच्ड हियर, तो अभी यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको, देखो कल्चर मीडियम जो है ना वो सिर्फ 3/4 मटेरियल में फिल है, ओके। 3/4 ऑफ द बायोरिएक्टर इज फिल्ड बाय द न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। नाउ 1/4 ऑफ द बायोरिएक्टर इज ओपन, मतलब वो एक ओपन है, वहां पे सिर्फ एयर है, ठीक है, एयर है और कुछ नहीं, कि वो भी स्टेरिलाइज, गॉट टू नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन, कंटामिनेशन नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगेन एंड अगेन वी वांट टू कीप द स्टेरिलाइज्ड कंडीशन, दैट इज व्हाई वी आर सेंडिंग द स्टीम, ओके। हम यहाँ पे स्टीम भेजते रहेंगे सो दैट द एंटायर बायोरिएक्टर इज गेटिंग स्टेरिलाइज्ड। स्टेरिलाइज एयर भेज रहे हो, पीएच के लिए जो आप NaOH या कोई HCl या कुछ भी एसिड या बेस डालते हो, वो भी स्टेरिलाइज होना चाहिए, सब कुछ स्टेरिलाइज, ठीक है। तो और भी और नेसेसरी प्रिकॉशन के लिए हम लोग यहाँ पे स्टीम यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ we have provided temperature, pH, gases, air, everything. Now what happened, culture is very hot, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ई कोलाई को अच्छा सा टेम्परेचर दिया, खाना, देखो न्यूट्रिएंट में क्या होता है, खाना होता है, फेवरेबल टेम्परेचर, पीएच, अभी फूल के फल के हमारे ई कोलाई ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, you know what is the problem in this bioreactor, अब बॉटम में देखो, where there is uh, water jacket near to the bioreactor, जहाँ पे वाटर जैकेट है वहां पे कूलिंग और हीट जल्दी होता है कंपेयर टू द सरफेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सरफेस में देखो, यहाँ पे लेट होगा, बट अब वही चीज यहाँ पे कंपेयर करोगे तो जल्दी होगा। तो यहाँ के ऑर्गेनिजम्स तो एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ वाले तो बेचारे सफर कर रहे हैं, सरफेस वाले, ठीक है। तो ये कंडीशन प्रॉब्लम हो रहा था हमारा, क्यों, क्योंकि देयर वाज एन इनइक्वालिटी, देखिए इनइक्वालिटी था कंडीशन में ऑप्टिमम सिचुएशंस को मेंटेन करने में। So this optimum situation is maintained with the use of impeller. अभी आप पूछोगे मैम आप नए नए इंट्रोडक्शन कर रहे हो टर्म्स का, इम्पेलर क्या, इम्पेलर इज नथिंग बट अ शेकर, ठीक है। एक शेकर होता है, देखो जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, आपकी दादी या नानी एक हांडी लेती है, हांडी में एक ऐसा एक रॉड होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ऐसे हिला हिला के छाछ निकलती है, ओके। वी टेक द बटर मिल्क, वी टेक आउट द बटर मिल्क फ्रॉम रबिंग मैट्रेस, कि आप अगर इसको ऐसे ऐसे करोगे ना दही में या फिर दूध में तो आपको मक्खन निकल जाए, ठीक है। तो लाइक दैट, तो सिमिलरली वी आर डूइंग दैट शेकिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ इम्पेलर। ये जो इम्पेलर है, दिस इम्पेलर विल रोटेट विद द हेल्प ऑफ अ मोटर, जिसमें एक मोटर यहाँ पे लगा हुआ है, वो मोटर आपको रीडिंग बताता रहेगा कि कितनी स्पीड में रोटेट हो रहा है, ठीक है। इम्पेलर कितनी स्पीड में रोटेट हो रहा है, आप स्पीड को मॉनिटर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोटर। नाउ सो दिस इम्पेलर हैज द ब्लेड्स, ठीक है। ब्लेड्स क्या होंगे, जस्ट लाइक अ फैन देखो, एक फैन का जो सेंटर पार्ट है वो इम्पेलर का रॉड है, जो ब्लेड्स है वो खुलते हैं तो आपको हवा आती है। तो सिमिलरली उस लिक्विड कंडीशन में वो इम्पेलर घूमता रहेगा और प्रॉपरली मिक्सिंग अप होता है, ओके। सो प्रॉपरली कल्चर मिक्स जब होगा तब क्या होगा, इक्वलाइज को सारे जगह पे इक्वल ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगे, सो इक्वालिटी मिलेगी, ठीक है। तो सारे बैक्टीरिया इक्वलाइज अच्छे से ग्रो हो जाए, ओके। नाउ आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग दैट इज देयर इन द स्लाइड, बस एक चीज मेरे से बच गई है, वो है
यहाँ पे देखो जहाँ पे खाली एयर है ना, वहां पे भी दो ब्लेड्स होते हैं. Here also there are presence of two blades, but this doesn't shake the liquid culture. जो liquid culture है वो shake नहीं करेगा, but this blade, okay, this blade helps in preventing the formation of foam. देखो बेटा, अब कोई भी एक सोल्यूशन है, लिक्विड है, आप उसको बार बार हिलाते रहोगे तो झाग बनती है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फोम, है ना. अब देखो आप ना कोई भी पानी में थोड़ा सा सोप पाउडर डाल लो या लिक्विड सोप डाल लो, देन यू शेक इट. व्हेन यू शेक व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एरेशन है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बबल, एंड देन दैट बबल्स विल कन्वर्ट इनटू फोम. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी फोम बनने की चांस है, and we want to remove that foam. Okay, क्योंकि foam जब बनेगा तो बैक्टीरिया की कल्चर ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं. Okay, so that foam is removed or made sure that कुछ भी problem ना create करे. So to prevent the formation of foam, we have used this dry blades. Okay, so this is all about the bioreactor chemical. Okay, now let's move ahead. This is the diagram given in your answer. ये जो डायग्राम भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है. ठीक है, तो ये देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है. देखो ये हमारा वेसल है. ठीक है, वेसल के अंदर क्या है, कल्चर मीडियम है. ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, हमारे इकोलाई फूल फल के ग्रो कर रहे हैं. नाउ देयर इज अ स्टेराइल एयर को जाने के लिए स्पेस है. देखो यहाँ पे खुली जगह में टीम हम लोग भेज रहे हैं फॉर द कंटिन्यूस स्टेरिलाइजेशन, एंड देन वी आर डूइंग द एसिड एंड बेस कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ पीएच. ओके, यहाँ पे एक पाइप होगा, हम लोग कोई एसिडिटी मेंटेन करने के लिए कोई एसिड डालेंगे, कोई बेसिसिटी मेंटेन करने के लिए अल्कलाइन कंडीशन में ऐड द बेस. तो ये सब ऐड कर रहे हैं. फिर एक मोटार है, तो ये मोटार एक इम्पेलर को रोटेट कर रहा. तो इम्पेलर इज रोटेटिंग एंड इम्पेलर हैज अ ब्लेड. जो वो ब्लेड है ना, वो क्या करेगा, इट विल शेक, continuously shake the solution, and this foam breaker, यहाँ पे लिखा है ना foam breaker, तो वो foam breaker help करेगा कि कोई भी foam ना हो. ठीक है, so all these things are given in your NCERT, so I hope it is clear. ठीक है, now there are two types of bioreactors. Okay, there are two types of bioreactors. ठीक है, so what you have studied now, अभी आप लोगों ने जो पढ़ा है ना, वो एक टाइप का simple, now what we understood, that is simple stirred tank bioreactor. Okay, so what we understood now, that is called as simple stirred tank bioreactor. देखो एक बायोरिएक्टर है, एक टैंक है ना, बड़ा सा बायोरिएक्टर, इट इज अ टैंक. नाउ stirred means what? Shaking. What we are doing, we are constantly shaking with the help of impeller. ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, stir the solution. ओके, सो आप अगर कुकिंग क्लास देखते हैं तो कीप स्टिरिंग द अनियन. ठीक है, ऐसा कुछ लिखते हैं. स्टिर मींस शेकिंग और मूविंग. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है इसलिए क्योंकि दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. बस हम लोगों को इम्पेलर्स की हेल्प से शेकिंग करवा के हम मेंटेन करना है कल्चर. ओके, दिस इज वन टाइप. ओके, दिस इज वन टाइप. सेकेंड टाइप जो है, दिस इज कॉल्ड एज स्पार्ज. ओके, स्पार्ज stirred tank bioreactor. Okay, tank bioreactor. So this is another type. Here what happens, instead of impeller there is just a normal rod. ठीक है, एक नॉर्मल रॉड है, जो ये नॉर्मल रॉड है वो घूमता रहेगा, बट यहाँ पे एवरीथिंग इज सेम, जस्ट इंस्टेड ऑफ स्टेराइल एयर. ठीक है, यहाँ पे स्टेराइल एयर डालते हैं ना, उसके अलावा हम यहाँ पे एक प्लेट रख रहे हैं. So with the help of plate, यहाँ पे small air bubbles add करेंगे. ठीक है, so here we are supplying the air in the form of air bubbles. ठीक है, तो air bubbles जाएंगे और यहाँ पे aeration देंगे. We will provide the oxygen by this method. Okay, so sparged means nothing but bubbles. Okay, sparged means bubble. तो bubbles क्या होंगे, stir होंगे, तो tank में maintain होगा condition. So this is another type. Okay, there are two types of bioreactors. Now, so in your NCERT, they have given something else. What they have given?
एक फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है बेटा, तो व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन? सो फर्मेंटेशन इज समथिंग, इट हैपेंस इन द एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में होता है। फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज है, उससे हम लोगों को कोई लैक्टिक एसिड बनाना है, कोई इथाइल अल्कोहल बनाना है। ठीक है, सो ग्लूकोज से जब अल्कोहल बनता है तो इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। बट what happens in the biotechnology when we say fermentation process, that means we are manufacturing something in the bigger quantity, in the bigger quantities, हम लोग बहुत large quantities में produce करते हैं। Okay, that is called as fermentation process. Okay, अभी so इस process में there are two types of fermentation process. The first type is the batch fermentation. First क्या है batch fermentation और also called as closed system. ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है हमारा बायोरिएक्टर के अंदर। ये सब कुछ चीजें हो रहे हैं बायोरिएक्टर के अंदर। ठीक है, तो बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है ना, तो फर्मेंटेशन मतलब सिर्फ इतना ही बेटा, हम लोग इंसुलिन बना रहे थे ना, तो इंसुलिन कैसे बनाएंगे? बैच में बनाएंगे। मतलब बायोरिएक्टर है, एक बार सारा न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया, तो देन वी आर अलाउिंग द ई कोलाई टू ग्रो। जब सारा न्यूट्रिएंट यूटिलाइज हो जाएगा, देन वी विल रिमूव द न्यूट्रिएंट मीडिया एंड द ई कोलाई। एक बार हम लोग रिमूव करेंगे एंड देन उसको ई कोलाई कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस मीन्स व्हाट? वी विल सेपरेट इट, प्यूरिफाई इट, थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव्स लगा के, टैग वगैरह लगा के, इंसुलिन बोल के हम लोग मार्केट में सेल करेंगे। दैट इज अ बैच फर्मेंटेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोज्ड। ठीक है, हम लोग इसमें बार बार कुछ चलो चलो पीएच कम है, चलो एसिड डाल दिया, चलो कुछ ज्यादा है, चलो कुछ ऐड कर दिया, ऐसे नहीं होता। इट इज अ क्लोज सिस्टम। एक बार बैच अंदर डाल दिया तो बाहर आने के बाद भी आप देख सकते हो, अगर कुछ ऑल्टर था, कुछ मिस्टेक था, तो वो सारा बैच खराब हो जाए। दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन बायोरिएक्टर, वी कॉल इट एज बैच फर्मेंटेशन। और एक मेथड है, वी कॉल इट एज कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम ही कहते हैं। So here what happened? Fresh medium is added in the bioreactor. एक बायोरिएक्टर है, हम लोग क्या करेंगे? फ्रेश मीडियम ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ग्रो होता रहेगा, हम लोग क्या करेंगे? यूज्ड मीडियम को रिमूव करेंगे एंड फिर वहां पे ही ओपन रहेगा। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, बायोरिएक्टर इज रनिंग, कीप रनिंग। ओके, इट कीप रनिंग, मतलब रन होता ही रहता है। एक तरफ ना एक और टैप होता है जिसमें हम लोग रिमूव करेंगे यूज्ड मीडियम, एक तरफ होता है कोई डालने के लिए कोई पाइप, तो वहां से हम लोग फ्रेश मीडियम ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे फ्रेश मीडियम ऐड करेंगे, जैसे जैसे यूटिलाइज होता रहेगा मीडियम, तो वो रिमूव किया जाएगा। सो दिस इज क्लोज्ड कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, सॉरी क्लोज नहीं, ओपन सिस्टम कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। यही चीज वहां पे लिखी थी बेटा। Okay, if you see here, the same thing is written here. Okay, क्या लिखा है यहाँ पे? Cells can also be multiplied by continuous culture system. Here, the used medium is drained out from one side, while the fresh medium is added from the other. ठीक है, so ये maintain करेगा physiological activities सारी हमारी बैक्टीरिया की, जो हमारी E. coli है, और इससे हमको desired protein मिलता है। ठीक है, so ये सब हो। Now, so there is another processing, we call it as downstreaming processing. ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग क्या है देखो बेटा, एक तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस मींस व्हाट, व्हिच इज हैपनिंग इन द बायोरिएक्टर, जो एक बायोरिएक्टर में हो रहा है। ठीक है, सो इस प्रोसेस के लिए दो आगे और पीछे प्रोसेस कहते हैं, दैट इज अपस्ट्रीमिंग। अपस्ट्रीमिंग मींस व्हाट? प्रिपेयरिंग। ओके, सो प्रिपेयरिंग रॉ मटेरियल्स, तो यहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल्स प्रिपेयर कर रहे हैं सब कुछ। सो ये सब करके यहाँ पे हम लोगों ने इनोकुलम ले लिया। ओके, इनोकुलम मतलब जो ई. कोलाई का हमारा बैक्टीरिया है वो ले लिया, सब प्रिपेयर कर लिया, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है? एक बार हम लोगों ने कल्चर बना लिया, बहुत सारा बायोसिंथेसिस का कल्चर हो गया, तब हम उसको निकालेंगे। देखो अल्टीमेटली हमारा डिजायर्ड प्रोटीन तो बैक्टीरिया के अंदर है, उसको बाहर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफाई करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ता है। ठीक है, so downstreaming process is nothing but it is very simple series of processes such as separation, purification of product. ओके, सेपरेट करेंगे प्रोडक्ट को, प्यूरिफाई करेंगे इन द बायोसिंथेटिक स्टेज, मतलब कल्चर स्टेज, जो कल्चर हो रहा है ना इन द बायोरिएक्टर वो।
ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सूटेबल प्रिजर्वेटिव में डालेंगे, थोड़े बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, मतलब इंसुलिन आते ही हम लोग मार्केट में सेल नहीं कर देते बेटा, वी ट्रायल इट, मतलब एक रैबिट के ऊपर, एक रैट के ऊपर, कोई एक ह्यूमन के ऊपर, सब ट्रायल करने के बाद, क्वालिटी टेस्टिंग करने के बाद हम लोग इसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है। सो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में ऐसा कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो होते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज आफ्टर द कल्चर, बायोसिंथेसिस कल्चर होने के बाद हम उस प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं। Okay, yeah, Bashir, it's done बेटा। Okay, separation, then purification, then suitable preservative को ऐड करते हैं, clinical trial करते हैं, quality checkup होता है, and ये सारा processing product to product vary होता है। ठीक है। So this is the end, we have completed the chapter। ये आपका homework question है। ठीक है, आपका homework question है, ये आप solve कर लेना, बहुत easy है। Meanwhile, Bashir, I am on to the NPS। Please make sure that you give me the feedback। मुझे feedback देके you can leave the class। मुझे भी class है बेटा। Please जल्दी से feedback दे दो, कैसा लगा आपको मेरी class? How was the feedback? Thank you so much। So I'll end the poll then। So chalo Bashir, thank you। So we'll meet in the next week, okay, with the new chapter। You go and read this, that is your homework। You have to go and read, okay?